गया। ओके। Yes. ठीक है, वी आर born to fly and to be successful. Yes, sir. That is not my message, that is God's message. So we have to respect Hmm. it. कि हमें क्यों भेजा गया है, एक घर Yes, में sir. बैठने के लिए नहीं भेजा गया। अच्छा है, बढ़िया कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन Hmm. दिस कंफर्ट विल बिकम पेन। Yes, sir. बिल्कुल। कोई उड़ ही ना पाए तो कैसा लगेगा उसको। Hmm. मैं तो वहीं बैठा रह गया यार, है ना। Yes, sir. ऑलराइट, सो वी विल टॉक अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग। तो जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑल हाँ, इनकम्पसिंग है। ऐसे ही बिट सेट, ऐसे ही वे, और तीन चार और एग्जाम बता दूंगा मैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन वन एग्जाम, देयर आर मेनी एग्जाम्स यू कैन प्रिपेयर फॉर एंड बिल्ड ओके। बीटेक फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस। हम्म। हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट प्लान बी क्या वही, है ना। वो जरूरी है। दैट इज करेक्ट। कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, सॉरी, आरसी सर्किट करना है ना हमें तो। हम्म। एल आर सर्किट हमने कर लिया। ठीक है। जी। चीयर्स। हम्म। यस। अब बताओ क्या पिया जा रहा है गरम। चाय। अदरक का टेस्ट। बट तुम नहीं पीना, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद। नहीं नहीं, पीला 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 तुम भी। ऑलराइट, सीरीज में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टर, कैपेसिटर, एल। तो आपने जो एसी से सिग्नल लगाया वो ये रहा, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई ये, सी लिखना चाहिए ना कि एल। ठीक है, ये इसके ठीक है। अंदर फेजर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसके अंदर करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स 90 by 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज। हम्म। फेजर्स मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ठीक है। ओके, सो व्हेन यू अप्लाई द instantaneous voltage, part of it goes here in the form of Ohm's law, हम्म। and this is instantaneous, and a part of that goes to the capacitor, which is so the instantaneous voltage splits in two parts. So if you draw the phasor diagram, हम्म। this is not algebraic addition, remember, अच्छा। because current is the same phasor for both. They're in series. हम्म। So I is same because it's a series arrangement. Series में current has to remain same, यस सर। right? But look at the voltage. In the case of resistor, if the current is this phasor, the voltage is also same phasor. हम्म। But in the case of capacitor, the current is same for both. But look at this. So what is the angle between VR and VC? 90. वी आर 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे, हम्म। तो सीधा नंबर नहीं है जो ऐड कर देना। दिस इज लाइक 2i - 3j।
जे नीचे की तरफ है ना वाई एक्सिस में, हाँ, यस सर। समथिंग लाइक दैट. हम्म, It is not algebraic. Just be very careful. We are यस सर। not doing 2 plus 3 is equal to 5. We are हम्म, actually doing 2i minus 3j. करेक्ट। It is more of vector addition than algebraic. हम्म, Algebra में तो ऐड कर लो 2 into 3. वेक्टर में थोड़ी ना यस। करते हैं 2i नहीं। into हाँ। 4j is equal to 8. I और j का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना. हम्म, Which means sense of direction is important. So करेक्ट। if you compare the voltage in the resistor and the voltage in the capacitor, the voltage in the capacitor is 90 degree behind the voltage in the resistor. ओके। Right? Can we say that voltage lags by 90 degree in a capacitor? हाँ। मैं deliberately बोल रहा हूँ so that you can understand it. Voltage हम्म, lags behind the capacitor by. नाइन्टी। धीरे धीरे I will tell you some new notations, but for the timing, let's use this English. हम्म, So I had a music class. 15, we had it for what, 45 minutes. अच्छा, ओके। तो करंट निकाल लेते हैं. हम्म, I naught. So remember these two are in series, and therefore if you have to write the uh, values of VR and VC in both of them, so let's apply E is equal to VC कितना है? I into XC. Okay, so XC is the reactance of the capacitor जो हम पढ़ चुके हैं. हाँ, 1 by omega C. यस सर। The total voltage is I into XC plus IR. हम्म, ठीक है. Let's take a magnitude of this vector 2 square ठीक है। plus minus 3 square. हाँ, So I into is the instantaneous voltage and the I is instantaneous too. हाँ, Okay. So at any instant, so I E instant upon I instant is equal to, सॉरी मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया. अगर यूं करा है ना मैंने हाँ, तो अलग से आएगा ना. यस सर। Z ये भी इम्पिडेंस ही कहलाती है. So anything which has both LNC और sorry LNR LR जो हमने पिछला करा था, हाँ, और anything which has RNC for example. Okay, the net ओके। opposition it offers is known as impedance. In both the cases represented by Z. L तो ठीक सिर्फ है। रिएक्टेंस देता है ना. हम्म, C भी रिएक्टेंस ही देता है. यस सर। एक का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. जो इम्पिडेंस Z है, that is basically R square plus some square of the reactance. ये जनरल फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस है. हम्म, प्योर रेजिस्टर and pure reactance का square. The net opposition to the alternating current is called as impedance. ये पता है हमें already. हाँ, यस सर।
सब कुछ सेम हो गया, सब सारा न्यूमेरिकल सेम हो गया, barring the fact that if you have to find now, if I draw a diagram which is I, and if you go down here, okay, this is your I and this is V. This is a capacitor, pure capacitor. The voltage is behind current, right? If you're moving in anti-clockwise direction. So I current leads in a pure capacitive circuit. हाँ Pure capacitive circuit. But if we say this is resistance, this therefore is XC, and if you calculate now, the resultant is this. So the resultant is Z is equal to under root of XC square plus R square. हम्म, And this is your phi. Earlier, the phase difference was 90 degree in a pure capacitor. But हाँ the voltage phasor shifts by certain amount. ये voltage phasor जो था ये shift हो गया यहाँ पे, इधर आ गया. अब जो angle है with the x-axis वो phi है. And the tan phi therefore can be written as perpendicular, which is xc. हम्म, ये parallel हो गया, law of parallelogram. Upon base. ठीक है. ठीक है तो आपका ये, और अगर आपको निकालना है cos phi, तो r divided by under root of. So you can see again the phi is earlier was minus 90 degree. हम्म, Minus 90 if we say that voltage lags. Okay, voltage हाँ lags in a pure capacitor, but because of introduction of the resistor with it, this phasor of the voltage shifts here. थोड़ा इधर shift हो जाता है ये ऐसे. Resultant ये आ गया ना, instantaneous. हाँ यस सर पहले तो सिर्फ यही था प्योर में, हम्म, सॉरी प्योर में तो यहाँ पे था करेक्ट इन द केस ऑफ कैपेसिटर, लेकिन एक वोल्टेज का कंपोनेंट वी आर भी उठा लाया, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर तो राइट एंगल पे हो गए, वो यही है. या तो आप उसको इम्पिडेंस की टर्म्स में डिस्क्राइब कर लो, आई इंटू आर, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, हाँ या आई दोनों में से कॉमन लेके आर और एक्स सी लिख लो. हम्म, ये वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी यस current. I'll just rewrite this so that it looks clean, okay? हाँ वो ठीक है Tell me which step is not clear to you. I will just pause here. You don't have to say सर yes मैं to रीड anything. आउट You कर don't रहा have to agree. If you're not able to understand any step, I will repeat it. ठीक है All it takes is 5 minutes to repeat. हम्म, Okay, read it very carefully as to how we started. What are we trying to do? We're trying to say if it's an RC circuit, how does the instantaneous current and voltage behave? So I have an AC source which is applied to me, to this total circuit of R and C. There is a current which is flowing, which is the instantaneous current. And we want to know two things about that current. We want to know its phase, which means अगर हमें करंट को लिखना पड़ जाए साइन ऑफ ओमेगा टी, वैसे तो प्लस 90 होना चाहिए था अगर प्योरली कैपेसिटर होता, हाँ तो मुश्किल थी नहीं. नहीं इसको लिख लेते ई नॉट बाय एक्स सी. ठीक But है problem is we don't have E naught by XC. नॉट What नहीं we end up getting is E naught by Z. हम्म, And then because of introduction of the resistor, this becomes phi, which is less than 90. So नहीं current is not able to lead the voltage
as much as 90 degree. The voltage now, resultant voltage is here. Hmm. Pure capacitor, the voltage was here. Yes, ये sir. वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज जो ये डार्क कर रहा हूँ जिसे मैं, वो तो अब 90 डिग्री पीछे नहीं है ना रेजिस्टेंस से, नहीं, वो अप्लाइड वोल्टेज से, करंट से, सॉरी। पहले सिर्फ VC was 90 degree away from the current. हम्म, ठीक है। लेकिन जैसे IR भी इंट्रोड्यूस हुआ, रिजल्टेंट आया, तो द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस. हम्म, Earlier when it was a pure capacitor, this was the phase difference between I and VC. But now there is a VR that also comes into picture. The VR and VC together are added vectorially. VC and VR, because if you introduce an R also, this potential difference some goes to this and some goes to this. Earlier, हम्म, it was only going to capacitor. कैपेसिटर, हाँ। If R also gets introduced, this VC shifts. हम्म, So the phase difference goes down. Previously, the phase difference was huge. हाँ, But now the new E instantaneous is only this much away from the current. Gap कम हो गया ना 90 से. यस सर। कितना गैप आपने कवर कर लिया? हम्म, So the conclusion is, if you introduce a resistor with the capacitor, it tends to decrease the phase difference between current and the voltage. The earlier the phase difference was 90 degree, and that got reduced to phi only. How do you find the phi? You can draw one triangle, which is the impedance triangle. This is resistor, reactance, resultant. आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का रूट। So this triangle, let me change the color of the triangle. This is the impedance triangle. हम्म, Pure ohms, this is reactance, and this is Z, also in ohms. ओके। Do you know how many hours does it take for a flight from Bhubaneswar to Delhi? नहीं, Mm-hmm. नहीं आइडिया नहीं। Idea नहीं है. Okay. Let me tell you if you don't know that. याहू पे तो दिख जाता है ना, हाँ, गूगल पे भी दिख जाता है फ्लाइट्स का ट्रैकिंग का. यस सर। 2 घंटे 5 मिनट. अच्छा। So whichever part of India you are, the longest flight is 2.5 hours. हम्म, तो आप अपने घर से ना कभी भी 2.5 घंटे दूर हो गए. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. हाँ, वो भी है। है ना? वो थे हम्म, जमाने जब बोट में जाना पड़ता था, हम्म, फिर बस पकड़नी पड़ती थी, फिर वो बैलगाड़ी पकड़नी पड़ती थी, फिर हाँ, यस सर। तैर के जाना पड़ता था एक तालाब से. अब वो टाइम नहीं है भाई. अब सब यस पास सर। ही है. हाँ, न्यूयॉर्क सिटी कितना टाइम लगता है एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट? 20 आवर्स शायद। 13 आवर्स. हाँ, कम हो गया था शायद, हाँ। भाई साहब 13 घंटे में. डोर टू डोर हम्म, नहीं बोल रहा मैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बता रहा हूँ. हाँ, वो तो ठीक है। अनलेस अब नए हवाई जहाज आ जाए जो घर से ऊपर छत से ही ले जाएं, सड़ी सीढ़ी डाल के आजा, तू भी आजा सवारी. यस सर। जो आने वाले टाइम में होगा, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होंगे 6 घंटे में अमेरिका. यस सर। तो मतलब प्लीज डोंट हैव एनी हेजिटेशन. दीज आर वेरी स्मॉल sacrifices.
घर से नहीं निकलोगे, बैठे रहोगे तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं। डोंट बी ठीक है। विक्टिम। हम्म। अबे अमेरिका देख लिया, उसके बाद क्या बचा हुआ है? यस सर। तो भयभीत नहीं होना है, सिर्फ ये देखना है कि सर कॉलेज बढ़िया है, बताओ ये खत्म। खत्म, हम्म। कोई क्वेश्चन ही नहीं है और। ठीक है। कॉलेज बताओ आपकी, क्या करना है उसमें घुसने के लिए, खत्म हो गई बात। हम्म। घुस के बाहर निकलेंगे तो ऐसे कई मकान बना लेंगे रोहतक रोड पे। नहीं हाँ तो उसी यस सर। मकान को खंडर बना देंगे। हम्म। ऐसे बहुत होता है। हाँ बहुत होता ओके। है। वेरी थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट आई थिंक इट विल गिव यू वेरी नाइस डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस इट। ओके। ठीक है। लो सर। ये जो सर आपने यूनिवर्सिटी बोली है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है? जी। अच्छा। फालतू एक तो बताऊंगा नहीं मैं। एनएफएसयू भी है ना? एनएफएसयू भी अच्छी है शायद। पूरा नाम बताओ। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। यस, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। हाँ। इसमें बायो तो नहीं चाहिए? नहीं, मेरे दोस्त ने लिया है इस साल एडमिशन। थ्रू? उसके एग्जाम से ही। उसका सेपरेट एग्जाम है। अच्छा, वेरी गुड यार। एनएफएसयू दिल्ली। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग इट्स कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं इसके। दिल्ली में और एनएफसी? गुजरात में है। नहीं नहीं, गुजरात, भोपाल, धारवाड़, युगांडा, पुणे, गुवाहाटी, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दिल्ली। ओ भाई, हाँ काफी सारे। इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें और एंट्रीज भी काफी कम बच्चे करते हैं। तो टफ एग्जाम है। टफ नहीं है, आइडिया नहीं है हम लोगों को। अच्छा, गुड यू टोल्ड मी। हम्म। इसमें तो यार बड़े डेडली कोर्सेज हैं। अच्छे एआई, कोर्सेज हैं डेटा हाँ। साइंस, एमटेक भी इसमें तो सीधा एमटेक में भी एडमिशन है यार। हाँ एमटेक भी है इसमें हाँ। 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड, ओहो। इसका भी सोचा ओहो, था हमने कि ये भी ट्राई कर लेंगे। ट्राई नहीं करना। अगर इसका एंट्रेंस होता है इसका। है एंट्रेंस इसका। ये सब। इसका पेपर देखा कभी? नहीं वो बाहर तो आता नहीं है? देखा। 1 मिनट चेक रुकना कर जरा। लूंगा मैं। नहीं, रुको रुको रुको। NFSU क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ मैं इसका। हम्म। हम्म। आई थिंक इसका वैसे इतना टफ नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त के। यार उसमें पंगा ये है ना कि जो कंपटीशन है ना फिर हाँ। प्रोपोर्शनेट है। हाँ कह सकते हैं। वैसे मेरे दोस्त के ना उसमें 86-87% आए थे जेई में। हम्म। और उसने फिर ये एग्जाम दिया तो उसका ये क्लियर हो गया। ओके। ज्यादा वो उतना ज्यादा पढ़ा नहीं था। अच्छा, तुम ज्यादा पढ़ो यार। हाँ मैं तो करूंगा पूरा ट्राई। यार बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है यार, बड़ा। कोर्सेज बहुत अच्छे हैं और कैंपस भी बहुत अच्छा है। बड़ा मतलब हाई क्वालिटी। इनका गुजरात में मेन कैंपस है, वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मिल जाएगा, पेपर ढूंढूंगा इसका मैं। ओके। लेट मी सी द क्वालिटी सो दैट वी आई नो कि आई एम ऑन ट्रैक और नॉट। ठीक। वैसे तो अगर तुम एग्जाम्पलर और वो करके जाओगे, तो हो सकता है। असाइनमेंट और जो मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ गए उसको, तो तुम हम्म। वैसे जेई को भी तोड़ ताड़ दोगे। इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें जेई से पहले कुछ महीने हाँ
थोड़ा सा और धक्का मार दूंगा, बट ये तो बहुत बढ़िया है यार पेपर। आई एम शॉक्ड मैन, लुक एट द लेवल। कोर्सेज कोर्स बहुत का अच्छे हैं नाम उसके। देखो यार भाई। ओए ओए, हाँ। दिल्ली घूम के आता हूँ कल मैं ये। हम्म, गुड वन यार। ये सब इसका तो हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि ये ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, ट्राई नहीं, इसमें सिलेक्शन है तुम्हारी। आई ठीक है। गेट यू, आई हेल्प यू आउट। इसमें तुम कोई जान। अगर गवर्नमेंट रेफरेंस का भी हो तो मेरे नाना जी गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं। ओके, तो इससे भी करो जी क्वेश्चन। अ, इसके तो मैं पेपर बना दूंगा। आपको मिल गए? तो नहीं, मैं खुद बनाऊंगा एक देख के। अच्छा। आपको किसी और अच्छे कॉलेज का भी आइडिया तो वो भी बता दीजिएगा सर। सारे बताता जाऊंगा। व्हाट आई टोल्ड यू वाज आल्सो अ हाँ फुल वो भी फ्लेजेड। हमने कंसिडर कर लिया। वो जई जई करते करते अच्छे कॉलेज भी मिस हो सकते हैं। यस सर। सही है, रीजनिंग। क्योंकि अच्छा करंट दिया लैग हुआ है। कर रहा है इसमें। ठीक है ठीक है। अच्छा एल आर है ना, तो एल आर सर्किट हो गया। ओके, सीरीज। ये तो एल आर का क्वेश्चन ही हो गया। यस सर। अच्छा, व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड द सेम करंट, ओ आई इज सेम। तो एक आई है 2 आई, दूसरा है 2 जे। वैल्यू सेम, लेकिन ऑब्वियसली ये लीड लैग का फंडा है। यस। इंडक्टर में इट लीड्स। गुड क्वेश्चन। आई कैन गो एंड टीच हियर यार। एनएफएससी में हम्म। आप तो काफी इजीली पढ़ा सकते हो। कुछ कुछ चीजें मुझे आती हैं। अभी पीएचडी मांगेंगे तो बात अलग है भाई। हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो हाँ इसलिए मांगेंगे। क्योंकि ऐसी जगहों पे फिर सैलरीज आर नॉट। वो भी। तो वो उन लोगों के लिए जो सेटिस्फाइड फील करते हैं, मजा आता है उनको। हाँ। मेरे जैसे लोग वर हैप्पी डूइंग यस सर। दिस, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू दिस। एवरीबडी वांट्स टू मेक अ बिग मनी। हम्म। अब टीचिंग एक थैंकलेस प्रोफेशन है, को नोबडी वांट्स टू बिकम अ टीचर नाउ। यस सर।
बहुत अच्छे यार. हाउ ओल्ड इज दिस इंस्टीट्यूट? काफी पुराना है, लेकिन अभी इसका नेम चेंज होके अब एनएसएससी हुआ। ओके. और इसमें ये कोर्सेज भी अभी ऐड हुए हैं मेरे ख्याल। Also. Okay, so it has entrance exam is physics, chemistry, bio for MSc Forensic. What is the syllabus of BSc, PG diploma in fingerprint, basis of PG बायो तो नहीं था diploma? मेरे ख्याल, नीट। नहीं नहीं, ये उसके लिए है सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए. अच्छा। एमटेक के लिए और उसके लिए नहीं है ये. हम्म। एमटेक के लिए गेट का स्कोर है. हाँ. ओके. एमएससी. हाँ. बीटेक इज ऑन द बेसिस ऑफ in fact and अच्छा। qualifying degree. The syllabus would be in two parts. 80% would include physics, chemistry, maths, and 20% of the syllabus, physics, chemistry, and maths will be same as prescribed by the JEE mains paper pattern. 20% of the portion. हम्म। Okay. तो 80% तो JEE mains पे के पैटर्न पे है. And 20% of the portion would include reasoning, English, grammar, general knowledge, and general awareness. बिट्स टाइप का But the सिलेबस। question of standard of the questions will be 10 plus 2 level. 10+। वो अच्छा। बोर्ड. सीबीएसई लेवल। यस. पैटर्न वो ओके। है जेई मेंस का. एमसीक्यू और क्या. अच्छा, तो इनके क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगता है तो। नाइस. मैं तो अपने लिए देख रहा हूँ यार. ओके। अब मुझे बहुत शौक है पढ़ाई लिखाई का. हाँ, वो दिखता है वो तो। मेरी उम्र के लोग पढ़ा नहीं सकते, भूल भुला जाते हैं सब. बिल्कुल। वो कहते छोड़ यार, अब यूट्यूब देखो और हो गई हमारी. वो बेटा क्रिमिनोलॉजी है इसके अंदर. ये पहले उसी के लिए था, क्रिमिनोलॉजी के लिए। हाँ. मेन। मैंने नाम सुना हुआ है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था ये. अच्छा। मैं भी दे ही देता हूँ, फिर एमए क्रिमिनोलॉजी कर लेता हूँ यार. फोरेंसिक साइकोलॉजी में कर लेता हूँ. कर लीजिए सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो फोड़ दूंगा मैं, इंग्लिश भी फोड़ दूंगा. ये वो वो तो है। बेटा इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी भी है गांधीनगर में 1 साल की. ओए होए, कोई एज लिमिट है? अगर नहीं है तो हमें कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है. यस सर। हो गया क्वेश्चन. हाँ। हाँ, हो गया। के आई ड्यू टू रेजिस्टेंस मालूम है. ओके, देन you're फाइंडिंग द रिजल्टेंट आई विच इज कॉमन इन बोथ. ओके, 1/2 √2 आ गया. ये क्या था? 0.5. ये करंट। Okay, 1 second. 0.5 MP. When the same voltage is applied, the voltage is same. Okay. When the same voltage is applied across, why the same current flows? 0.5 ampere. So you have taken same voltage divided by R square plus XC square. कितना दिया हुआ है? How did you find XC? XCR के इक्वल होगा। कहाँ दिया? इसमें लेते देखो. ही थे नहीं नहीं फेज नहीं, hold और। on. See, when the same voltage is applied across another device.
तो वी सेम, ठीक है, अग्रीड। वी वोल्टेज सेम सेम। लेने पे हम आर और एक्सी सेम लेते हैं नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। आप नहीं नहीं, एक मिनट। जब आपने वोल्टेज लगाई तो डिवाइस सिर्फ एक ही था। हम्म। तो वो एक डिवाइस की इक्वेशन कहाँ पे है सेम वोल्टेज पे? तो आपने पहले रजिस्टर पे लगा ली वो इक्वेशन, ओम्स लॉ। हाँ। इंडक्टर पे कहाँ लगाई है आपने? V इज इक्वल टू आई एक्स सी। अच्छा। उसने ओ। लिखा है ना, जो अकेले अकेले लगाई है। गॉट। ठीक है। यस सर। हाँ। करंट 0.5 है, लेकिन एक्स सी नहीं पता आपको। ओके, तो फिर एक्स ये सी भी आ गलत है। जाएगा ना इससे। आएगा हाँ। वही व्हाट यू हैव। एक्स एल सी क्यों लिखा है? कैपेसिटेंस है ना? एक मिनट। ए सी व्हेन द सेम द करंट, अच्छा ठीक है, यस कैपेसिटेंस है। यहाँ कुछ और दिख रहा है लिखा हुआ है यार, तभी तो मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ। अच्छा, ये इसको कैपेसिटर लिखता हूँ, ओ मैंने भाई। गड़बड़ कर। हाँ। कैपेसिटर। हाँ। हम्म। सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी। इसका जो एन यार। एनफैट एग्जाम है वो तो होता भी जुलाई में है। ओके। इसमें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। हो गया सर। ठीक है, एक्सेल भी आ गया। अब क्या करना है जब दोनों आ गए? अच्छा, वो कितना है एक्सेल? 440। 440 आ गया, ठीक है। एक्स सी। सॉरी, एक्सी। सो डिवाइसेस पता चल गई, करंट। अब दोनों को जब लगा दिया तो निकालना है करंट। अच्छा, यू फाउंड व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, ओके। ठीक है। गलत पता है क्यों है? एम्पियर या वोल्ट कुछ लिखो वैल्यू। हाँ, एम्पियर एम्पियर। यूनिट नहीं है, मैं बता रहा हूँ 15 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। डू यू सी दैट यू डू द सेम प्रॉब्लम हम्म। रिपीटेडली? यस सर। पूरा पेपर ठीक, 15 नंबर गए। ठीक है। वेरी वेरी डेंजरस। हम्म। 440, 440। ओके। इसका पेपर करेंगे एक दिन। हाँ, ढूंढते हैं यार। ढूंढता हूँ मैं। इनफैक्ट का तो मिल जाएगा। ओके। एनटीए एग्जाम में। जुलाई में होता है, यस। जुलाई में। यस सर। बीटेक का एग्जाम 2 ढाई घंटे का है। हाँ, 2.5 घंटे का।
एनटीए ने कराई। हाँ। वेरी नाइस। इसमें तो फिर मेनली एनसीईआरटी कर ली तो उससे भी हो जाएगा शायद। हमेशा याद रखना, यू टू इफ यू वांट टू गेट इनटू एन एंट्रेंस, हम्म। यू नीड टू हैव कंपेटिटिव एज। ज्यादा आना चाहिए लोगों से। हाँ, वो तो बिल्कुल है। 20 क्वेश्चन करके सिलेक्शन ना होती है किसी की। 40% हाँ। पक्के हैं, उससे मैं बता रहा हूँ। हाँ। डोंट अंडर एस्टिमेट पेपर्स। पेपर में ना पैनापन होता है थोड़ा। हम्म। शार्प होते हैं पेपर्स। ये सब। सभी ना सिलेक्ट हो जाए। इसमें शायद बैठते भी सिर्फ 400 500 बच्चे हैं। ओके। इतना समझ लो, नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड यार। वो तो मुझे भी इजी समझ ही। नहीं है। जो गोलीबाजी है ये कि ओह हमें तो मिल जाएगी, बड़ा आसान होगा। नहीं होगा, वो मैं तो बता रहा हूँ। बिल्कुल है। सब एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन इज पब्लिक एग्जाम इज कंपटीशन। दुनिया आती है यार, सबको पता है आजकल। बिल्कुल। ये जो कोर्स का लेवल है ना, जो इसके अंदर दिख रहा है मुझे, इट कैन, इफ यू डू वेल इन कोर्स लाइक दिस, यू कैन गेट अ सैलरी पैकेज ऑफ करोड़ रुपीस स्टार्टिंग। एनएफएसयू में भी। जी। इफ यू टॉप देयर, बाय द टाइम यूर आउट एट हम्म। 22 2.5 फॉर वट एवर एज यू आर, 20 हाँ, 22 21 23 जो भी होती 22 है, ही बनेगा, हाँ 22 ही बनेगा। तो यू कैन गेट अ सैलरी, दैट लेवल ऑफ सैलरी। कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ वो है। हाँ, मजेदार काम है फिर ये। हम्म। कुछ करने की क्या जरूरत है, 10 साल काम करो, घर बैठ जाओ, हॉबी फॉलो करो। सर ये क्वेश्चन सर मिसिंग लग रहा है मुझे। नहीं, कैलकुलेट द आरएमएस एंड इज द, कोई ओके, वैल्यू नहीं दी हुई कोई यहाँ इज सर्किट। द, वो अच्छा सर्किट नहीं दिया हुआ। ओके, आई थिंक दिस इज ऑन पेज नंबर, क्या क्वेश्चन है, लेट मी कैलकुलेट रीड। द करंट इन द सर्किट। यस, ओके, अग्रीड। इनकम्प्लीट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीमिंगली यार। वेट, यस सर। क्योंकि इसमें जो वो वही बात पूछी है, अलजेब्राइक वर्सेस वेक्टर, हम्म। कि भाई अलजेब्राइक सम तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन अलजेब्राइक तो ऐड ही नहीं होती वोल्टेजेस। यस सर। दे आर एक्टेड यूजिंग फेजर एडिशन। ओके, आई थिंक अ लाइन इज मिसिंग। लाइन भी और सर्किट भी। मतलब तो इट इज understood that the circuit is, आ गया। हाँ। Now do this. ठीक है। जैसे 20% रीजनिंग इंग्लिश वगैरह है,
बिट अब सेट मान लो टाइप की है। अब नाउ एवरीबडी इज इक्वल, हाउ विल यू हैंडल दैट? हम्म। समझ रहे हो? तुम्हारी रीजनिंग और तुम्हारी इंग्लिश और तुम्हारी वो अगर फर्क हुआ तो वो तो प्रैक्टिस तो करनी है। हाँ, छोड़ नहीं सकते मतलब। डोंट लीव इट टू चांस की इट्स इजी। 20% तो मतलब हाथ से ही निकल जाएगा। मतलब हम्म। आर यू डूइंग रीजनिंग क्वेश्चंस एवरी डे? यस सर। सवाल ही उठता है ना फिर, कैसे कर? हाँ, अगर रीजनिंग क्वेश्चन डेली नहीं कर रहे तो तुम्हारे को क्या लास्ट दिन रीजनिंग आ जाएगी? नहीं आने वाली तुम्हें रीजनिंग। उसका रीजनिंग ये सोचा डेवलपमेंट था के कि लिए। जैसे कि अभी अप्रैल तक ये प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जून, मई जून में इंग्लिश कर ली। नहीं 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 नहीं, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। प्लीज लेट्स फाइंड द पेपर। ओके। आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो, डोंट वरी। मैं बता दूंगा कैसे करनी है तैयारी। ठीक है सर। रीजनिंग और लॉजिकल जो होता है वो इट हैज टू बी डन एवरी डे एंड माइंड हैज टू बी डेवलप्ड एवरी डे। हम्म, वो जून में जाके नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ। आई हैव डन दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, डजंट हैपन। सो वो ठीक यू है। विल हैव टू स्पेंड 15 20 30 मिनट्स फॉर दोस 20%। रोज आधा ओके। घंटा आपको लगाना पड़ेगा उस पर। चाहे दो हम्म, क्वेश्चन करो। ठीक है सर। आई विल टेल यू हाउ टू डू। मैं सारे प्रोसेस से निकल चुका हूँ, सब करा हुआ है मैंने ये। वो तो आपको तो आपसे अच्छा किसको बता। तो विल टेल यू द वे आउट। जीतता वो नहीं है जो मतलब अर्जुन होता है, जीतता वो है जिसकी साइड कृष्ण होता है। यू हम्म। नीड अ मेंटर टू गाइड यू। मेहनत तो आपने करनी है, बट यू हैव यस अ सर। मेंटर ऑन योर साइड हु इज हेल्पिंग यू, दैट कैन मेक अ सी चेंज इन योर एफर्ट। बिल्कुल। टफ नहीं है, टाइम चाहिए होता है, हम्म। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। हो यस जाता सर। है। लिखा सामने ही होता है वही तू। मेरे लिए भी वही लिखा, आपके लिए भी वही लिखा है। कौन डेडिकेटेड है, किसमें फायर है। Okay, so you have to calculate the how the voltage splits हम्म। IR and I into XC। यस सर। तो पहले तो I निकाल लो Z की हेल्प से। स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। अच्छा ठीक है। दिस इज VRMS। बी वेरी केयरफुल। ओके। Whatever is given is RMS। ओके सर। Okay? This is so this is your capacitor, this is your resistor, this is your applied। Okay, so this is your 220 volt RMS, which gets हम्म। split between this and this, right? So this is your VC and that's your VR। यस सर। तो आपको दोनों पता लगाना है कि किस रेशियो में स्प्लिट हो रहा है वो। ठीक है। एक रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है और एक आर ऑफर कर रहा है। जी सर, ठीक है। यू सर्च फॉर दैट पेपर। यस सर। वैसे तो समझ में आ गया लाइन पढ़ के, बट देखने से थोड़ा और बिलीवेबल हो वो जाएगा। उससे और हाँ।
एग्जाम्पलर का कोई एमसीक्यू मत छोड़ना, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पलर से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। हाँ ये सब। चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, शॉर्ट आंसर हो, आ सकता है। हाँ वो बोर्ड से बहुत बहुत। लंबे लंबे इंटीग्रेशन के जो एंड में क्वेश्चन होते हैं, दो चार वो छोड़ दो। मैच द फॉलोइंग, ये असर्शन रीजनिंग सब करनी पड़ेगी। ठीक है। लॉन्ग आंसर बेशक छोड़ दो। वो भी आ ही जाता है। हाँ, यू नेवर नो। ये नाम हम्म, रखा हुआ है एनसीईआरटी, सिलेबस काटते जा रहे हैं। एग्जाम्पलर में वो जो कटा हुआ सिलेबस है उसके क्वेश्चन जोड़ते जा रहे हैं, फिर वहीं से बोर्ड का हम्म, पेपर बना रहे हैं। हाँ वही। हाउ मिसलीडिंग इज इट। बहुत चीटिंग है। हाँ, जबरदस्त। भाई सैंपल पेपर का स्टैंडर्ड देखो। ये सब। पूरा पेपर है। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं मतलब बंदा घूम जाए कि क्या पूछ रहा है भाई। हम्म, ये तो फालतू टॉपिक्स में लगे हुए हैं। हाँ, रैशनलाइज कंटेंट। मतलब पेपर रैशनलाइज बनाओ यार तुम हमें हम्म, उल्लू मत बनाओ। रैशनलाइज अभी कंटेंट मतलब पेपर कब रैशनलाइज करोगे तुम। आज पेपर का तो ऊपर इनका जा रहा फेवरेट है, टॉपिक है। कोर्स नीचे जा रहा है। आज का तो इनका फेवरेट टॉपिक था कि एनसीईआरटी का नेम चेंज करके वो भारत करके कुछ करें। क्या मतलब। वो कह रहे कि जैसे एनसीईआरटी पे इंडिया लिखा हुआ है ना हर जगह, अच्छा अच्छा। उसको भारत में उससे क्या कन्वर्ट होगा। करें। तो पता नहीं इनको ही कुछ खुशी मिलती है। हम्म, कुछ नहीं होगा उससे। हम्म। मतलब ये कोर्स की जगह इस पे फोकस कर रहे हैं ये लोग। रॉन्ग फोकस। हम्म, मतलब कॉन्टेक्स्ट पढ़ाई है तो पढ़ाई करो यार। ठीक है। अच्छा, तो इंक सेट आ दिखनी गया। बंद हो गई बिल्कुल। 1 मिनट यार। पहले से बेटर समझ में आया जितना पहले आता था कभी। हाँ बिल्कुल, पहले से तो बहुत ज्यादा। अंधेरा है बिल्कुल, स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा व्हाट यू राइटिंग। लेट्स गो टू मुझे द भी नहीं नेक्स्ट दिख पेज रहा। ना। हाँ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, ये भर गया पेज। ये सब। कॉपी कर लो उसको पीछे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे, एंड डू इट ठीक है। देन। ओके। तो अपना एक्सी भी खत्म हुआ। हाँ एक्सी मतलब सीआर सीरीज सर्किट भी खत्म हुआ। हाँ ये सब। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज टुमारो ऑनवर्ड्स combine हम्म, all three, L C R together। अच्छा। यहाँ लिखा जा रहा है, कॉपी हो गया। वो लोडिंग दिखा रहा है, हाँ वो हुआ। ओके, आ गया। यस सर। ठीक है, नाउ डू इट। नहीं समझ में आया हो पूछ लेना अपने। एक दिन क्लास सेट कर लेते हैं किसी दिन, हम्म, पढ़ने की जगह डाउट्स इकट्ठे करके पूछो। ठीक है। पेपर डिस्कस करना हमने। आई सॉ योर आंसर्स। मुझे तो उसके अंदर लग रहा था सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट है जैसे, उसमें कुछ लिखा नहीं कोई खास। मतलब। एक्सप्लेनेशन नहीं होती थ्योरी वाली, कोई क्वेश्चन नहीं हाँ था क्या थ्योरी का उसके अंदर कोई खास। मतलब जो थे उसमें तो मैंने लिख दिया सारा, ओके, विल गो वन जितने बाय थे। वन। हाँ। ओके, न्यूमेरिकल तो चलो समझ में आता है कि हम्म, व्हाट इज टू बी डन, राइट। ना जितने थे उनको तो मैंने लिखा। ठीक है, कर लेंगे डिस्कस, खोल के कर लेंगे। मैं ठीक है। मैथ्स के पेपर भेजूंगा कल 2। अच्छा। हाँ, पॉइंट इज कि करते जाओ साथ साथ। हम्म, मार्क करते जाओ, कहाँ अटक रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्क दो टॉपिक्स राइट इन योर कॉपी बुक। भाई समझ ठीक ही है। नहीं आया है तो भाई भूल गया हूँ मैं, ये हो गया तो रिपीट हम्म, कर लेंगे, 10 मिनट लगते हैं यार। हाँ बिल्कुल। डरना मत, क्या है दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। हम्म, इसकी सुस्ती नहीं। दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ, वो क्या है, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा पूछ लो।
यस हम सर। भी भूल जाते हैं, हम भी आंसर देख रहे होते हैं यार कई बार, मतलब ठीक है, उड़ जाता है मेमोरी से। अब मैं दोबारा कोर्स कर रहा हूँ टेस्ट के लिए, तो आएगा हाँ, डाउट। और तो शार्प हो जाओगे। हाँ। यू विल योरसेल्फ गेट शार्पर। यस सर। ओके, आई तो दोनों में सेम होगा बिकॉज दे आर इन सीरीज।
हाँ यस। ठीक है। कैपेसिटर, इसमें ये आई एक्स ही होगा ना? इसमें इस वाले पार्ट में। यस, यस, बिल्कुल। इट इज मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस। बट ये वाला वीसी लैग करेगा, पीछे होगा नीचे की हाँ हाँ, तरफ। कैपेसिटर बिल्कुल। में देखेंगे तो रेजिस्टर वाला यहाँ होगा, रिजल्टेंट यहाँ होगा। यस सर। 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, करते जाओ। सही है। हम्म, इनका अलजेब्रिक सम करना। अलजेब्रिक तो मना होता है ना। अगर तो डायरेक्टली रूट ऐड वाला कर नहीं दोगे है? वोल्टेजेस को तो यू विल गेट 151 प्लस 160, राइट। वो तो नहीं है। तो वो तो 300 कुछ हो गया। जो सप्लाइड वोल्टेज है वो कितनी है, 220। और तो इन वो दोनों रूट का वाला सम ही क्या आ होगा। जाएगा। वो तो हाँ। द रीजन यू द अलजेब्रिक इज मोर बिकॉज अलजेब्रिकली ऐड ही नहीं करने हैं, गलत है वो ऐड करना। तो 151 यहाँ पे है और 160 परपेंडिकुलर है उसके, तो रिजल्टेंट इज। रिजल्टेंट रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। हाँ, करके देखना कितना आता है। यूज कैलसी। अच्छा ठीक है। यू कैन देखो जरा क्या आता है। ठीक है। 220 तो, वीआरएमएस दिया था ना टोटल। हाँ। ठीक है, तो ये उससे आ करंट रहा निकाल लिया है। था। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, टू इम्पिडेंस दी हुई है। रजिस्टर इज 200, इम्पिडेंस कैसे निकाल ली थी। अच्छा, पिछले पेज में हाँ ठीक है। ओके, ये आ रहा है, ओके, 220 आ रहा है। देखा। हम्म। सो 220 का मैजिक इज कमिंग फ्रॉम वीसी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वो बोल रहा है यस। यार वीसी प्लस वी आर तो यार बहुत बड़ा है 220 से यार। तुमने तो यस। टोटल 220 दी थी, तुम्हारी 300 कुछ कैसे आ रही है। मतलब हाँ भाई साहब ऐसे ऐड ही नहीं करना। प्लीज डोंट ऐड algebraically, प्लीज ठीक। ऐड लाइक दिस। फेजर फेजर एडिशन करनी है, और ये दो फेजेस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हैं, दोनों फेजर। वीसी यहाँ है और ये है। ठीक है। पल्ले पड़ा, बैठा दिमाग में जाके। हाँ काफी ज्यादा। ठीक है। So tomorrow what we will start is LCR circuit. ओके। See you. Bye.